ઝૂમ રેકોર્ડિંગ બંધ છે ને ભાઈ? હા. Okay, in this chapter, which is applications of trigonometry, you will require two things. The first thing is the table. Which table? Sine, cos, tan, cot, secant, cosec. 0 degree, 30, 45, 60, 90. But one good thing, full table is not used. तो जनरली આખું કોસેકની જરૂર નથી, સેક જરૂર નથી, કોટ જરૂર નથી, સાઇન જરૂર નથી, કોસ જરૂર નથી, 0 ડિગ્રી જરૂર નથી, 90 ડિગ્રી જરૂર નથી, tan 30, 45 और 60 80% सम्स पती जाए. तो 80% of the sums has tan 30, tan 45, tan 60. અને આ ત્રણ વેલ્યુ જો આવડે તો તમારે ટેબલની ચિંતા મટી ગઈ. tan 30 √3, tan 45 1, tan 60 1/√3. But we will use table in every sum. And second thing you require is knowledge of two things: angle of elevation and angle of depression, which I will explain you now. Angle of elevation, angle of depression અને હોરાઇઝન અને लाइन ऑफ साइट, ये सब एक ही चीज़ है, लाइन ऑफ साइट. So we'll try different scenarios, and in each scenario you have to identify these 2 or 3 things. This is the ground. On the ground there is a tall tree, and you are sleeping on the ground. You are looking at the tree. तो ग्राउंड पे सोते सोते तुम पेड़ को देख रहे हो, तो आंखों से पेड़ के टॉप तक it is called line of sight. Line of sight. और जहां से देखना शुरू किया है जमीन पे, वहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ग्राउंड के साथ पैरेलल, इज द होराइजन. और होराइजन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है, that is called angle of elevation. Why elevation? Because you are looking up. So whenever you look up, it is the angle created is called angle of elevation. So elevation word के साथ up और depression के साथ down दिमाग में फिट कर. बट अगर तुम सो नहीं रहे हो, तुम ग्राउंड पे बैठे हो, तो will the scenario change? Yes. How will it change? ट्री तो वही है, बट बैठे नहीं, हम खड़े कर देते हैं तुमको. खड़े रह जाओ ग्राउंड पे. And now look at the tree. Your line of sight has changed.
एंड कंपल्सरी द होराइजन इज नॉट द ग्राउंड, वरना मैं ग्राउंड लिखता. होराइजन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम प्लेस फ्रॉम विच यू आर लुकिंग. जहां से तुम देख रहे हो वहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. बिकॉज एंड ऑफ द डे तुम देख तो ऊपर ही रहे हो. तो जब जमीन पे देख रहे थे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड ही थी, बट खड़े हो गए तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर आ गई. अब तुम स्टूल पे चढ़ रहे हो. सो दिस इज द ग्राउंड, सेम ट्री, and this is the stool or a platform on which you are standing, and looking at the tree. Now your line of sight will change again, और horizontal वहीं से शुरू होगा, and this is your angle of elevation, ऊपर देखने का एंगल. Any questions? आँख यहां से हॉरिजॉन्टल निकलना चाहिए, that's all. Whoever is seeing it is seeing from his eyes, therefore one line goes up and one line goes horizontal, and that angle is called angle of elevation, ऊपर देखने का एंगल. बट जब तुम ऊपर चढ़ के ट्री को देख रहे थे तब तुमने ऑब्जर्व किया कि ट्री के बॉटम पे एक चूहा है, and suddenly it created some noise and you saw, तुमने उसको नीचे देखा. तो अब तुम चूहे को देख रहे हो. So this black line is the line of sight. और नीचे देखने के टाइम पे भी horizontal line is a must. From the same place, a horizontal line, which is the horizon, this is the line of sight. Looking at the rat, this angle of looking down is called angle of depression. So it's very simple. Keep your hand straight. This is 0 degrees. अब ऊपर देखोगे तो angle of elevation, नीचे देखोगे तो angle of depression, all starting from your eyes. Any question? Angle of elevation, angle of depression? No. Good. This is the old textbooks presentation. तुम्हारे टेक्स्ट का रेडी नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में रेडी कर दूंगा. वी आर प्रैक्टिसिंग ड्राइंग राइट नाउ, सो यू ऑल्सो आई रिकमेंड यू ड्रॉ विथ मी. क्वेश्चन पढ़ेंगे, ड्रॉ करेंगे, बिकॉज विदाउट ड्रॉइंग दिस चैप्टर इज इम्पॉसिबल. विल नॉट सॉल्व सम्स, विल ड्रॉ देम. अगर तुम फॉन्ट्स पढ़ नहीं सकते तो सुनो. A pole stands vertically on the ground. Pole stands vertically on the ground. Take a scale and a pen, ball pen, pencil. Draw the ground first. जिसको कोई नाम देने की जरूरत नहीं. If the angle of elevation has measured 30, दूर दूर लिखा है, English language. Narendra Modi, who is the Prime Minister of India, is 70 years old. तो नरेंद्र मोदी 70 years old मैं बोल सकता हूँ, बट बीच में मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी. नरेंद्र मोदी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन हैज मेजर 30.
बट कहाँ से कहाँ तक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखना, लेकिन कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है और कहाँ देख रहा है. सो अ पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, वो अब तक खत्म ही नहीं हुआ है. पहले पोल तो क्रिएट करो, और पोल हमेशा 90 डिग्री होता है. सो दिस इज द पोल which is standing vertically on the ground. If the angle of elevation of the top of the pole is very important, of the top of the pole मतलब कोई पोल के टॉप को देख रहा है, बट कहां से, कहां से का मतलब है फ्रॉम अ पॉइंट 90 मीटर अवे फ्रॉम द पोल. तो एक ऐसे पॉइंट से देख रहा है which is 90 मीटर अवे फ्रॉम द पोल. तो ये रहा पॉइंट P. नाइन्टी मीटर अवे फ्रॉम द पोल, और पॉइंट P से पोल का टॉप देखोगे तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट, और वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन इज द ग्राउंड दिस टाइम. And this is the angle of elevation which is already given as 30. तो पोल को नीचे से देख रहे हो 30 डिग्री हो रहा है एंगल. एनी क्वेश्चंस? नो. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. एक टिप देता हूं, जो भी ढूंढना है उसको एक अल्फाबेट दे दो. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो ये है H. चैप्टर 9 का जो एप्लीकेशन था वो हो चुका है. चैप्टर 9 इज अबाउट ड्राइंग फिगर्स, एंड वंस यू फिनिश ड्राइंग फिगर, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट्स. और ट्रिगो ने हमको ये सिखाया है कि H, दिस इज थीटा, H इज द ऑपोजिट साइड एंड 90 मीटर इज द एडजेसेंट साइड, एंड दिस इज द हाइपो. और 90 मीटर इज गिवन, H we have to find out. मतलब adjacent 90-20 भी हो सकता. 90 मीटर adjacent is given. Opposite H we have to find out. Adjacent और opposite साथ में आने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तोआ. सो मैंने जानबूझ के tan चूज किया because tan is opposite upon adjacent. But tan what? Tan 30, because 30 degree is the angle. तो tan 30 की वैल्यू, tan 30 is √3. ऑपोजिट मतलब H, एडजेसेंट 90. बस क्रॉस मल्टीप्लाई, हाइट इज इक्वल टू 90 √3. दिस इज आंसर. फर्स्ट ऑप्शन 90 √3 is accepted as the answer, height of the pole. But √3 की वैल्यू बाय हार्ट होनी चाहिए 1.73, और 90 √3 means 90 into 1.73, 155.7. That is second answer. दोनों लिख के आना, both are necessary. Any questions? सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड अ मिसिंग साइड, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में तुमने सीखा था, सोका तो. एनी क्वेश्चंस? नो. साथ में ड्रॉ करते जाना. अ स्ट्रिंग ऑफ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग. अब पतंग चगा रहा है कोई, तो जमीन तो होनी चाहिए सबसे पहले. सो ड्रॉ द ग्राउंड फर्स्ट, अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन जो तुम्हें पता है ग्राउंड है. अ स्ट्रिंग ऑफ काइट 100 मीटर लॉन्ग मेक्स एंगल 60 विथ हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड, मेक्स एंगल 60, स्ट्रिंग ऑफ काइट. તો પતંગની દોરી જમીન સાથે 60 ડિગ્રી ક્રિએટ કરે છે. એનો મતલબ જમીનથી કોઈ પતંગ ચગાવે છે અને આ રહી દોરી અને આ રહી પતંગ. This is a real life scenario which you would agree.
is 100 meter long. The string of the kite is 100 meter long. Find the height of the kite. Height of the kite જમીનથી આમ મપાય. કોઈ બી વસ્તુની હાઇટ સીધું નીચે માપવાની હોય और ये अपने आप 90 होता. Find the height of the kite. Who can explain me the last sentence? तुम्हें बोल रहा है assuming that there is no slack in the string. मतलब દોરીમાં કોઈ ગાંઠ નથી. ગાંઠ નહીં. Wrong. સર દોરી એકદમ સ્ટ્રેટ છે. દોરી એકદમ નીચે નમતી નથી. હા. રિયલ લાઈફ સિનેરિયો પતંગ ચગાવતી વખતે રિયલ લાઈફ સિનેરિયો આમ હોય. દોરી સીધી ના હોય કોઈ દિવસ. ચગાવી હમણાં ઉત્તરાયણમાં જોઈ તો હશે કમસે કમ કે જમીનથી પતંગની દોરી આમ જ હોય. અને જો આવું હોય તો ટ્રિગ્નોમેટ્રી અપ્લાય જ નહીં થાય. ધીસ ઇઝ નોટ અ રાઇટ એંગલ ટ્રાયંગલ. સો દે આર ટેલિંગ સ્લેક એટલે આ કર્વેચર ઝોલ કે વજનથી નમી જાય એ નથી એવું અઝ્યુમ करो અને કાઇટની हाइट फाइंड करो. तो ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल रेडी. अब इससे ज़्यादा सिंपल क्या है? दिस इज द हाइपो. अच्छा, व्हाट वाज द एंगल क्रिएटेड बाय द स्ट्रिंग एंड द ग्राउंड? 60. हाइट ऑपोजिट हाइपो. तो ऑपोजिट और हाइपो वाला एक रेशियो फिक्स करो. सो sin is opposite upon hypo. Sin 60 is opposite upon hypo. Sin 60 ની value √3/2. Opposite h hypo 100. h is equal to 100 √3/2 50 √3 अथवा 50 into 1.73 86.5 meter is the length of the height of the kite. Sorry. Any questions? આ સિંગલ ટ્રાયંગલ વાળો બહુ જ ઇઝી છે. બહુ મજા આવશે. મેઇનલી ડ્રો કરતા શીખી જાઓ. સોલ્વ તો આપોઆપ થશે. Good question, important question. Again, I am sorry if you cannot read it, then listen carefully. A circus artist is climbing from the ground. From the ground. तो मैं पहले ground बना रहा हूँ. This is my ground. He is climbing. Climb का मतलब ऊपर जाना. So he is going up from the ground. Let's say यहाँ से शुरू करता है वो A से ऊपर जाना. लेकिन कहाँ ऊपर जा रहा है? Along a rope. तो somebody is climbing up from the ground along a rope. The rope कहाँ है? The rope is stretched from the top of a pole. तो अब पोल बनाना पड़ेगा. POLE पोल. तो ये बन गया पोल. POLE. And the rope is stretched from the top of the pole and tied at the ground. तो ग्राउंड पे उसको बांधा हुआ है. तो पॉइंट ए तक रोप बांध दो. Any questions? So slowly and steadily the question will reveal all the information. कि पोल है, रोप है, रोप यहाँ से वहाँ तक बांधा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो ऊपर चढ़ रहा है, कभी वो नीचे भी आ सकता है. तो डोंट अज्यूम एनीथिंग, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट. आगे द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर. हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर and the angle made by the rope with the ground level is 30. रोप और ग्राउंड के बीच का एंगल 30 है. तो दिस इज 30 डिग्री ऑब्वियसली. Calculate the distance covered by the artist in climbing the top of the pole.
ना, हाइट ऑफ पोल तो 10 दिया हुआ है. हाइपो हाइपो हाइपो, हाँ हाइपो. वी हैव टू फाइंड द हाइपो. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट भाई साहब यहाँ खड़े. सो आर्टिस्ट इज हियर and he is climbing the rope. Therefore, how much distance he is traveling? He is traveling hypo. तो hypo ढूंढना है, that's all. So का तो हुआ. Hypo question mark opposite given. Hypo और opposite मतलब so. Sin is equal to opposite upon hypo. Sin 30 is opposite 10 upon hypo h. Sin 30 मतलब 1/2 is 10 by h. h equal to 20. Artist travels 20-meter distance on the rope. Any questions? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम सिर्फ ड्रॉ करो और फिर मैं ड्रॉ करूंगा. यू कैन कंपेयर. आई एम क्रिएटिंग अ क्वेश्चन फॉर यू विच यू हैव टू सिंपली ड्रॉ. Just try to draw this. It's a very simple and real life scenario. बिल्डिंग लेफ्ट में और स्टूल राइट में हो सकता है, या उल्टा भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो योर राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी इन एनी डायरेक्शन, इट्स ओके. So I have the stool, I have the boy, I have the building, and I have a window. Window at a height of 40 meter. तो विंडो से नीचे 40 मीटर is the distance. Who is looking? The boy. तो बॉय से विंडो तक लाइन ऑफ साइट देखने का. यहां से हॉरिजॉन्टल, जहां से ऊपर देखते हो वहीं से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता. एंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड स्टूल इज 25. तो स्टूल से
25 मीटर दूर बिल्डिंग, एंड सेम 25 इज दिस लाइन ऑल्सो, और विंडो पूरा 40 है, तो दिस गेट्स डिवाइडेड. सो इफ यू कंपेयर दिस ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल में दिस इज 25, दिस इज x, और अगर ये ऊपर का पार्ट x है तो नीचे का 40 माइनस एक्स. I have done one mistake in this question. What is it? Find the height of મીટર આપી દીધું હાઈટ તો આપવો પડે, એક વસ્તુ આપવી પડે. ના 5 મીટર સ્ટૂલ. હા બીજું શું કહો છો? શું મિસિંગ છે? एंगल नहीं आपेलू. एग्जैक्टली. बिना एंगल के सम खत्म ही नहीं होने वाला है. तो I should have given the angle. The boy on a 5 meter stool is aiming at a window at a height of 40 meter in a building, creating angle of elevation 60. તો અહીંયા 60 આવી જાત અને સમ સોલ્વ થઈ જાત. બટ એનીવેઝ દિસ વોઝ જસ્ટ અ ગ્લિમ્સ. कुछ तो किया होगा. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम. પવન આવ્યો અને ઝાડ તૂટી ગયું. પહેલા જમીન બનાવો. A tree breaks due to a storm and the broken part bends. ટ્રી આખું પડ્યું નથી, વચ્ચેથી તૂટ્યું છે અને એનો broken part bends such that top of the tree touches the ground, making angle 30 with the ground. એક ઝાડ ઊભું હતું અને એ પડ્યું. મારો A4 સાઇઝ પેપર કેમ ગયો? दिस इज द ट्री, और इसमें 3 डायमेंशन नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में, 2 डायमेंशंस. सो दिस इज द ट्री इन फ्रंट ऑफ यू. I cannot see myself. Okay, now I can. तो ये पेड़ है, जमीन के ऊपर खड़ा है. It broke because of storm, और जब वो टूटा तो उसका टूटा हुआ पार्ट नीचे टच हुआ. Once again I'll show you. यहाँ से उसको पहले से तोड़ देते हैं. So this is the ground, this is the tree, and when it broke, it touched the ground. Can you imagine a right angle triangle being formed here? Yes, sir. ये अभी भी 90 है. ट्री का ट्रंक बेंट नहीं हुआ है. सो व्हेन इट वाज स्टैंडिंग एट 90. अब ऊपर का पार्ट बेंड हुआ है, बट दिस इज स्टिल 90. What has happened here is, I'll draw 2 figure before and after. Before, this is the tree standing tall, creating 90 degree. Then it broke, and when it broke from here, and after breaking it is touching the ground, creating an angle of 30 degree. Can you see a right angle triangle? Yes. Yes, yes, sir. But अभी क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन बाकी है. The distance from the foot of the tree, foot of the tree किधर है? ये रहा, F for foot, to the point where the top touches the ground. Top touches the ground. ये टॉप है और ये टॉप गिर के यहाँ टच कर रहा है ग्राउंड को. So distance between the foot of the tree and the place where the top touches the ground is 30 meter. Base 30 meter. Base 30 meter. Question is, find the height of the tree. ट्रिग्नोमेट्रिक फिगर ऐसा होगा, तुम्हें पेड़ वेड़ ड्रॉ नहीं करना है,
तुमको सिंपल ग्राउंड, द स्टैंडिंग ट्री, ब्रोकन एंड टचिंग द ग्राउंड वाला ट्री, एंगल क्रिएटेड 30 एंड टॉप से लेके बेस तक 30 मीटर. दैट्स योर trigonometric figure. A standing tree breaks and touches the ground. Alphabets are important. Slowly you have to learn to be more particular. तो A, B, C, D. Then all अगर 3 या 4 मार्क पूरे चाहिए तो let AC is equal to standing tree. Agree? B is equal to broken point, जहां से टूटा था. Therefore, हाइट ऑफ ट्री कितना है? हाइट ऑफ ट्री कौन सा अल्फाबेट है? AC, BC, AC. AC, BC તો ખાલી ટ્રીનો ટ્રંક છે. આખી ટ્રીની હાઈટ એટલે AC સ્ટેન્ડિંગ ટ્રી છે તો હાઈટ ઓફ ટ્રી AC. પણ AC ના બે ભાગ છે, AB પ્લસ BC. પણ AB જ્યારે નીચે પડ્યો તો હવે એ BD બની ગયો છે. इमेजिन ये है, ये पार्ट बेंड होके नीचे आ गया, सो ए बी हैज नाउ बिकम बी डी and BD is hypo of a right angle triangle. BC is opposite 30 degree ની સામે અને adjacent 30 છે. तो अब तुमको समझ में आया क्या करना है. योर जॉब इज टू डू सोहकातोआ एज पर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिगो एंड फाइंड आउट हाइपो एंड ऑपोजिट. विदाउट वेस्टिंग टाइम, sin 30 is opposite upon hypo. This is a wasted formula. ये सेंसलेस पॉइंटलेस फॉर्मूला है क्योंकि ना हमें ऑपोजिट पता है ना हाइपो. रॉन्ग चॉइस. tan 30 तोआ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. tan 30 એટલે 1/√3 BC अपॉन 30 अपॉन √3 BC मिल गया. पहला टुकड़ा ट्री का 30 अपॉन √3 है. स्टॉप हियर. अब हाइपो कैसे मिलेगा? अब साइन यूज करो. नाउ यू कैन यूज sin 30 1/2 BC 30 अपॉन √3 अपॉन BD हाइपो. क्रॉस मल्टीप्लाई BD इज इक्वल टू 60 अपॉन √3. ये हाँ મારે આ cos 30 થી આવી ગયું આ. તો બી ચાલે, કરાય બિંદાસ, કોઈ પ્રોબ્લેમ, ગમે તે વાપરો. પણ લોજિકલી સાઇન સ્ટાર્ટિંગમાં સાઇન વાપરવાનું લોજિક નહોતું. tan પછી સાઇન બી ચાલે, કોસ બી ચાલે, और आइदर वेज यू कैन फिनिश इट. પણ હવે मतलब तुमने चैप्टर 9 से शुरू किया था कि क्वेश्चन समझ के फिगर बनाओ. फिर चैप्टर 8 में एंट्री ली सोहकातोआ से मिसिंग साइड फाइंड करो. नाउ यू नो द हाइट ऑफ ट्री इज मेड अप ऑफ BD प्लस BC. BD प्लस BC. दिस इज 9 स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम चैप्टर. इसका प्रोसेसिंग आना चाहिए. लकी फॉर यू डिनोमिनेटर इज सेम, सो 60 प्लस 30 90 अपॉन √3 मीटर्स हाइट ऑफ द ट्री. बट मत लिखना ऐसा. क्यों नहीं चलेगा? ये दो रीजन है. एक, डेसिमल में आंसर लाओ. ये रियल लाइफ चैप्टर है.
application, and when you apply things your answer should be in day to day language. કેટલા મીટર ઊંચું ટ્રી હતું? તો 90 upon root 3 is a wrong answer, मतलब not a good answer. What is second reason why this is not a good answer? कट पण થઈ શકે છે સર. Rationalize the denominator. रूट्स को कभी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते. तो 90 रूट 3 अपॉन 3, 3 and a 90 cut, 30 root 3. Still this is not a good answer because you know that root 3 is 1.73. આનો આન્સર જે આવે એ સત્યવચન 51.9. 51.9. This is called an answer. What is the height of tree? 51.9 meter. तो हर एक सम में धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा. इसमें चैप्टर 9 आया नंबर सिस्टम पहली बार, इसमें कुछ ऐड करना पड़ा पहली बार, एंड फिगर्स तो सीखना ही पड़ेगा. मेन थिंग इज लर्निंग हाउ टू ड्रॉ फिगर्स, तो सॉल्विंग लेवल पे जा पाओगे. एनी क्वेश्चन? नो, वी आर गुड. Yes. मस्त. ध्यान से सुनो या पढ़ने की कोशिश करो. An electrician has to repair an electric fault on the pole of height 5 meter. तो इलेक्ट्रिशियन है, एक इलेक्ट्रिक पोल है, तो ऑब्वियसली द इलेक्ट्रिक पोल इज ऑलवेज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. तो ये हो गया एक इलेक्ट्रिक पोल ऑफ हाइट 5 मीटर. 5 मीटर पोल. Electrician has to repair an electric fault on the pole of height 5 meter. He needs to reach a point 2 meter below the top of the pole to undertake the repair work. એને જ્યાં રિપેરિંગ કરવાનું છે ત્યાં પહોંચવા માટે ઉપરથી 2 મીટર નીચે પહોંચવું પડશે. So he needs to reach this place so that he can stand here and repair the fault over here. Can you imagine? તો માણસને જ્યાં પહોંચવું હોય ત્યાંથી 2 મીટર નીચે ઊભા રહેવું પડે. So he is standing on the red dot, and the red dot is 2 meters below the top. तो बाकी का कितना? 3 मीटर. What should be the length of the ladder that he should use? હવે એને સીડી મૂકવી પડશે ચડવા માટે, અને એ સીડી ક્યાં મૂકશે? My question is, the electrician should keep the ladder at point A, B or C? B. उसको यहाँ चढ़ना है तो वो लैडर B पे रखेगा और फिर चढ़ के यहाँ पे वो रिपेयर वर्क खत्म करेगा. इमेजिन कर रहे हो? क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर? L question mark that he should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal. और horizontal इसमें ज़मीन है, तो ज़मीन के साथ 60 डिग्री पे रखी हुई लैडर को कितना लंबा होना चाहिए so that he can reach the position. Any question? This chapter is about explaining figures, nothing else. तो वापस से एक बार, अब ट्रिगो वाला फिगर, तुम्हें इंसान और इलेक्ट्रिक पोल कुछ नहीं बनाना है. दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द पोल. पोल से 2 मीटर नीचे पहुंचने के लिए दिस इज द सीढ़ी. लेंथ ऑफ लैडर क्वेश्चन मार्क. लैडर और ग्राउंड का एंगल 60. पूरा पोल 5 मीटर, बट ऊपर से 2 मीटर
तो ऑटोमेटिक नीचे का पार्ट 3 मीटर. And from this you would jump to pure trigo figure. Pure trigo मतलब सिर्फ एक right angle triangle. Pole is always standing 90 degree. This is 3 meter. This is 60. And this is L. ये कितना easy sum बन गया. This is hypo. So sin 60 is opposite upon hypo, length of the ladder. Sin 60 root 3 by 2, 3 by L. L is 6 upon root 3. Do you think if the electrician goes to the market to buy this ladder, लोग उसको पागल कहेंगे? 6 upon root 3 मीटर लंबा लैडर चाहिए भैया. Rationalize the denominator. 3 and 6 cut 2 root 3. If you said 2 root 3 then correct. But 2 root 3 लंबाई का लैडर भी मार्केट में नहीं मिलता भैया. 2 into 1.73 करना पड़ेगा. हाँ, तुम्हारी टेक्स्ट बुक के पीछे के सारे आंसर्स थर्ड क्लास है. मुझे डेसिमल में आंसर चाहिए वरना मैं 0 देने वाला हूँ, याद रखना. गुजरात बोर्ड हैज़ बीन यूजिंग their old textbook since almost 7 years. और 7 साल बाद वो टेक्स्ट बुक जब जितना यूज़ किया है वो सारे के सारे आंसर्स डेसिमल में थे, बिकॉज दे आर रियल लाइफ क्वेश्चंस. एंड योर टेक्स्ट बुक, all the answers are rubbish. So throw the answers of textbook away, find out every answer in decimal and that will be your correct answer. वरना फिर मार्क्स जाएंगे, मुझे मत बोलना. Now this requires little bit of imagination. क्या टाइम हुआ? Okay, we have as observed from a fixed point on a bank of a river. There are many ways to draw a river. I am drawing it in 3-dimensional to try to explain it to you. This is the river which is coming from far off. You can see the two banks of the river. As observed from fixed point on bank of a river. ये हो गया मेरा fixed point on one side of the river. Angle of elevation, मतलब यहाँ से ऊपर देखना है. Angle of elevation of a temple on opposite bank. ऑपोजिट बैंक पे एक मंदिर है. और ये पॉइंट से मंदिर के टॉप को देखा जा रहा है. सो ऑब्जर्व फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू द टॉप ऑफ द टेम्पल. Again, I'm telling you the English is angle of elevation has measured 30. दूर दूर लिखा है, मतलब ये पॉइंट से मंदिर को सीधा ज्वाइन करो नदी के साथ, तो द एंगल क्रिएटेड इज 30 degrees. If the height of the temple is 20 meters, find the width of the river. This is the width of the river. ट्रिगो वाला ट्राइंगल दिखा? Yes. तो width of the river is basically the base of the right angle triangle. So trigonometry wise, you don't have to draw the river or anything like that. What would a good question contain or a good answer?
temple, point, see the top of the temple. That's all. A, B, C. टेम्पल हमेशा सीधा खड़ा होता है 90 डिग्री. ए बी इज द विड्थ ऑफ द रिवर. ए इज द पॉइंट. बी सी इज द टेम्पल. एनी क्वेश्चंस? टेम्पल का हाइट 20 मीटर. विड्थ ऑफ द रिवर पता नहीं, बट एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट इज 30. सो का तोआ करके एडजेसेंट साइड मिल जाएगी. यू विल अप्लाई tan 30 तोआ. tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. आगे तुम करना. एनी क्वेश्चन इन रिवर्स सम? अब कितने 6 सम किए? 6. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा ही है. They were all single triangle sums. If you observe, there is only one right angle triangle. Electrician पोल पे चढ़ रहा है, but there is only one right angle triangle. Tree गिर गया है, only one right angle triangle. 7 sum के बाद 2 right angle triangles will come. यहां से एग्जाम में आएगा. इसके पहले के एक भी सम एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बिकॉज दे आर वेरी इजी. So from here you will get sums in exam. If I look at your textbook, ना एक ही एक्सरसाइज है ना. हाँ. Circus artist, repeat sum. Tree breaks due to storm, repeat sum. और ये 2 सिंगल ट्राइंगल सम्स है, बाकी सारे डबल ट्राइंगल. काइट फ्लाइंग, सिंगल ट्राइंगल, सिंगल ट्राइंगल. तो मैक्सिमम सम्स आर रिपीट, बट लेट मी शो यू अ डबल ट्राइंगल सम नाउ. 1 सम एंड देन होमवर्क कल सुबह अपलोड होगा, तो रात को 12 बजे के पहले खत्म करना है. 10 सम होंगे, सारे सिंगल ट्राइंगल सम्स. सो डोंट वरी अबाउट दिस सम, बट लर्न. as observed from the top of a hill 200 meter high. ग्राउंड, हिल, और हिल की हाइट ऐसे मेजर होती. 200 मीटर हाई हिल. एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल. तुम हिल के टॉप पे बैठे हो और वहां से कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो. एंड देर आर 2 थिंग्स विच यू कुड ऑब्जर्व. इफ यू ऑब्जर्व द सन, देन द एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन. बट यू ऑब्जर्व अ कार विच इज गोइंग ऑन द ग्राउंड, देन देर इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो यहां पे क्या है वो देखते हैं. हिल पे बैठे बैठे द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कंपल्सरी तुम नीचे देख रहे हो. ऑफ 2 व्हीकल्स मीन्स तुम 2 बार अलग अलग व्हीकल्स को देखोगे, सिचुएटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द हिल. एक व्हीकल लेफ्ट साइड, दूसरा व्हीकल राइट साइड हो सकता था, बट ऐसा है नहीं. सो सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 200 मीटर हाई हिल, you are looking at vehicle A and vehicle B, and this is your line of sight. Are found to have measure 30-60. Once again, English language is dangerous. Angle of depressions are found to have measure 30-60. One question. Now focus on the figure only. Hilltop x y.
तुम्हें रियल हिल बनाना नहीं है. तुम्हारा हिल इज जस्ट अ सिंपल स्ट्रेट लाइन विच इज 200 मीटर टॉल. और हिल हमेशा सीधा होता है. 90 डिग्री आ गया. So you can see two right angle triangles XAY, XBY. First question to you. Angle created are 30 and 60. ये पूरे फिगर में 30 कहाँ पे लिखूं? एंगल ए. एंगल ए. एंगल ए. Wrong. एंगल ए. Angle B. Wrong. Angle A. Wrong. A 30 नहीं है. Angle B. Wrong. Angle X. अब X A वाला है X B वाला? दोनों रॉन्ग. फिलहाल इस फिगर में 30 और 60 एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख नहीं सकते. सो अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट सम वेयर समबडी इज लुकिंग डाउन. तो जब तुम ग्राउंड लेवल से ऊपर चढ़ के ऊपर से नीचे देखते हो तो दिस इज योर लाइन ऑफ साइट. और मैंने कहा था लाइन ऑफ साइट जहाँ से शुरू होती है वहीं से हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. तो हॉरिजॉन्टल ये है एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. टेक्निकली एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम जहाँ से नीचे देखते हो वहीं से सामने लाइन होनी चाहिए, जो यहाँ पे है ही नहीं. दैट्स वाई जानबूझ के मैंने तुमको रॉन्ग प्रूव किया. ये ड्रॉ करना पड़ेगा डॉटेड लाइन, एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन जिस अब इसको हम एक्स वाई जेड. नाउ टेल मी वेयर इज द रियल एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री. बेसिकली ए और बी में चूज करना है. इट्स द स्मॉलर एंगल, मतलब जेड एक्स बी. एंड जेड एक्स बी 30 है. तो डू यू रिमेंबर टू पैरेलल लाइंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दे आर सेम. जेड फॉर्मेशन. तो उसकी वजह से बी 30 होता है. B is not the angle of depression. Angle of depression 30 यहाँ है ऊपर. बट ज्योमेट्री में दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में ऊपर 30 तो नीचे 30, इसलिए B 30 होगा. और अब तो पता चल ही गया होगा कि 60 कौन है. ZXA is 60. Therefore angle A is 60. So first एंगल ऑफ डिप्रेशन पे ध्यान रखना, वो ऊपर से नीचे कॉपी होते हैं. बाय डिफॉल्ट नीचे लिखोगे, मार्क्स नहीं कटने वाले, बट इट इज इनकरेक्ट. एज अ टीचर आई हैव टू टीच यू कि अगर ये डॉटेड लाइन नहीं है तो ये 30-60 विल बी स्लाइटली इनकरेक्ट. बट मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे जन नहीं करते. अब बिना जेड के, बिना एंगल ऑफ डिप्रेशन के कभी 30-60 का 60-30 हो गया तो गड़बड़ होगी. So how will you remember is 90 डिग्री के नज़दीक आओगे तो एंगल बढ़ते जाएगा. 90 डिग्री के नज़दीक आओगे तो एंगल बढ़ते जाएगा. तो 30 से बढ़ के 60 हो गया और आगे 60, 70, 80 और फाइनली 90 हो जाएगा. सो 90 के नज़दीक बड़ा एंगल, 90 से दूर छोटा एंगल. So whatever way you want to remember it, but this is the two triangle figure, triangle XYA and triangle XYB. Any questions? હા સર એટલે તમારો કહેવાનો શું કે મીનિંગ એ છે ને કે રાઈટ થી લેફ્ટ જઈએ તો 90 વધતું જાય. રાઈટ થી લેફ્ટ, લેફ્ટ થી રાઈટ નહીં. અમુક લોકો હિલ રાઈટ સાઈડ બનાવશે અને ગાડી આ બાજુ હશે. 90 ડિગ્રીના નજીક જઈએ તો એંગલ વધે. 90 ની નજીક મોટો એંગલ લખવાનો. 90 ના નજીક મોટો એંગલ લખવાનો. જે હોય. હવે બેક ટુ ધ ક્વેશ્ચન.
अब देखो मेरा हिल एक स्ट्रेट लाइन बन गई, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे कॉपी हो चुका है 30-60, इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फिगर. मेन क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल्स. मतलब क्या? सर YA प्लस फाइंड AB. ए बी. फाइंड AB. तो मैं ए बी को कन्वीनियंस के लिए मैं ए बी को एक्स बना देता हूं. सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, ड्रॉ द फिगर. सेकेंड उसकी एक की बनाओ, विच इज अ गुड हैबिट. कोई नहीं बनाता, तुम बनाओ. एक्स वाई इज इक्वल टू हिल इज इक्वल टू 200 मीटर. ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन कार्स. A and B are two cars. बस बेसिक व्हाट इज व्हाट, क्योंकि तुम कार ड्रॉ नहीं कर रहे हो, तुम हिल ड्रॉ नहीं कर रहे हो, इसलिए. वाई ए, डू वी नो व्हाट इज वाई ए? नहीं पता. हवे तो ये छोटा वाई, और ट्राई करना डोंट यूज कैपिटल एक्स एंड वाई. कट कर दो उसको, सी डी बना, ए बी सी डी. सो सी डी इज द हिल. ये सीखना मुश्किल है, जो एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में. दिस टाइम्स होमवर्क विल नॉट कंटेन सम with two right angle triangles, but I am solving it for you quickly just so that you can see it. The time is up, but I'll still solve. टू ट्राइंगल वाले सम्स में पहले तो दोनों ट्राइंगल को अलग करने होते. दोनों ट्राइंगल को अलग करने का मतलब है ट्राइंगल सी डी ए सी डी बी. सी डी ए का एंगल ए 60, सी डी बी का एंगल बी 30. सी डी खुद हाइट ऑफ द हिल 200. डी ए को हमने वाई बना के रखा है, और डी बी कितना है बताओ? X plus Y. x plus y. db is da plus ab, x plus y. वेरी गुड. तो अब मुझे मेन फिगर की भी जरूरत नहीं. तो क्वेश्चन में से फिगर, फिर क्वेश्चन देखने का नहीं. फिगर में से दो ट्राइंगल, फिर मेन फिगर देखने का नहीं. सोका तोआ करके y मिल जाएगा. तोआ tan 60 is opposite upon adjacent. tan 60 मतलब 1/√3, 200 upon y. y is 200√3. ये हो गया पहला पड़ाव, y की वैल्यू मिल गई. बट हमेशा याद रखना टारगेट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, x. ओके, तो x ढूंढने के लिए सोका तोआ tan 30 opposite upon adjacent. tan 30 मतलब √3, 200 upon x plus y. क्रॉस मल्टीप्लाई, x plus y is equal to 200 upon √3. यहां तक आने के बाद इवन ट्रिग्नोमेट्री फिनिशेस. हाँ सर y ની વેલ્યુ 346 મીટર હશે. જો ગુડ that you asked. y પૂછ્યો જ નથી. y છે શું? કાર એ અને હિલ વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ, પણ એ પૂછ્યો જ નથી. આપણે એ બી ફાઇન્ડ કરવાનો, ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ કાર, એટલે એક્સ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો જ્યારે એક્સ ફાઇન્ડ કરવાનો હોય તો વાયની સિમ્પ્લિફાઈડ વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની નહીં. ખબર પડે છે? કારણ કે એ રિસ્કી છે, એનાથી સમ ડિફિકલ્ટ થાય. એટલે વાય પૂછ્યો નથી. 200√3 बिकम हैप्पी. और इसके बाद जो मैं बोल रहा था कि अब ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो गया.
हाँ, दिस इज बेसिक मैथ्स. x plus y is 200 upon root 3. x is equal to 200 upon root 3 minus 200 root 3. હવે જો મહેક શું વેલ્યુ કાઢી હતી તે? 346 આવે છે સર. 346. તો ઉપરનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું હું કહું છું. તમે વાયની 346 કાઢી તો તમે આ કરો છો. અને આઈ રેકમેન્ડ બેઝડ ઓન માય એક્સપિરિયન્સ, ડોન્ટ ફાઇન્ડ અનનેસેસરી વેલ્યુઝ, કારણ કે એ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરશે હમણાં નહીં તો છેલ્લા સ્ટેપમાં. એટલે હવે જુઓ આઈડિયા શું છે. એલસીએમ તો 200 ની નીચે તો √3 છે જ. ડાન્સ સ્ટેપ બી ખબર છે. તો √3 into √3 3 into 200 600. हाँ, 200 minus 600 minus 400 upon √3. Rationalize the denominator. तो √3 मल्टीप्लाई करवानो तो minus 400 √3 upon 3. અને now there is no option but to substitute 1.73 and do the tough calculation. So 400 into 1.73 upon 3. તો આ actual કરવું જ પડે. 400 into 1.73 692 upon 3 230.66 મીટર. હવે આ જે માઇનસની સાઇન છે, સી માઇનસ અને પ્લસ ઇઝ જસ્ટ શોઈંગ યુ ધ ડાયરેક્શન. ए टू बी जो प्लस होय तो बी टू ए माइनस गणाय मैथ्स में नंबर लाइन. मुझे डिस्टेंस से मतलब है, एंड वी हैव लर्नड इन 9th स्टैंडर्ड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. therefore we have to write one sentence, the distance is always positive, therefore the distance between two car is 230.66 meter. तो बेसिक स्टेप समझो. ये सम सॉल्व करना आए वो मैंने सिखाया नहीं है. आई एम हैप्पी इफ यू लर्न बेसिक स्टेप्स एटलीस्ट. फर्स्ट स्टेप इज क्वेश्चन टू द फिगर, करेक्ट फिगर विथ फुल इंफॉर्मेशन. सेकेंड स्टेप, फिगर टू द की कि कौन हिल है, कौन कार है और क्या फाइंड करना है, एक्स वाई. फ्रॉम देयर यू हैव टू डिवाइड द सम इनटू 2 ट्राइंगल्स जिसमें 2 एंगल डिवाइड हो जाते. फिर सोकातोआ एंड देन स्टार्ट्स नंबर सिस्टम जो तुम्हें आना ही चाहिए. सो हाँ, 1060 એટલે √3 થાય. 1060 √3 1031/√3. હા, જો નેગેટિવ આન્સર એટલે આવ્યો કારણ કે આપણે ખોટી વેલ્યુઝ પુટ કરી હતી. ધ મિનિટ યુ ચેન્જ ધીસ, your answer will change and it will come positive only. But as I said, I'm not worried about the answer right now. Overall process समझो कि ये एग्जाम में आने वाला है. क्वेश्चन टू फिगर, फिगर टू 2 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल टू 10 10 અને પછી અંદર સબસ્ટિટ્यूट કરીને आंसर लाता नेक्स्ट टाइम सीखूँ. तो तुम्हारा कल का होमवर्क मैं कल सुबह अपलोड करूँगा और रात को 12 बजे के पहले 10 सम ख़त्म करने. Any questions? No, sir. And keep the table in front of you. Don't make a mistake like me. 1/√3. It's very tempting and confusing. So thank you for pointing out the mistake. Sir, 1060 1/√3 જ આવે. લ્યો પત્યું. એટલે ભરોસો કરવા લાયક જ નથી. કોણે બોલ્યું હતું પહેલા? કોણ હતી? શ્રીના હતી? કઈ છોકરી હતી? હા, તો ઇન શોર્ટ टेबल सामने रखो. यू आर whenever you are doing homework, practicing, keep the table in front of you. Don't be done. एग्जाम में अपने आप हो जाएगा. और मैं क्या करता था,
आई टेल यू वेरी क्रॉस माई हार्ट, मदर प्रॉमिस, जिस दिन मुझे बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड बोर्ड का पेपर मिला मैथ्स का हाथ में, विच वॉज मार्च 1999, एंड द मिनट द टीचर सेड स्टार्ट राइटिंग गो, तो मैंने पेपर को उल्टा किया, रफ लिखा और टेबल बना के रख दिया. और टेबल बनाना इजी है, वो तुम सीख सकते हो मेरे वीडियो में से, यूट्यूब पे से. तो मेकिंग द टेबल वन टाइम करेक्टली इन 60 seconds is better than trying to recall the values in 3 different trigonometric sums. ट्रिग्नोमेट्री के 3 सम आएंगे और ये टेबल काम आएगा. तो लेसन 8 और लेसन 9 का टोटल वेटेज लगभग 10 मार्क्स है, और 10 में से 7 मार्क का टेबल में से आएगा. टेबल बना के रख दो, तो यू आर सो सेफ फिर पीछे से देखने का. एनी क्वेश्चंस? સર हाँ, સર એક્ઝામમાં સ્કૂલની એક્ઝામમાં કેવી રીતે માર્ક્સ આવશે, કેટલા માર્કનો આવશે? स्कूलनी एग्जाम